پیارے بچوں اور بھائیوں، آج کہانی کا عنوان ہے مولوی اور چور۔ نیند اور نیک نیتی کا ملاپ۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ گاؤں کی مسجد میں آخری نماز ختم ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب، جن کا پورا نام مولانا عبدالرحمن عرف مولوی چھینگ علی تھا، اپنے حجرے میں بیٹھے کھراٹے لے رہے تھے۔ وہ کھراٹے نہیں بلکہ اذان کھراٹیا تھی، جس سے دور دور کی بلی، کتے اور مینڈک بھی توبہ کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی سی چائے کی پیالی رکھی تھی، جس پر مکھیوں کا اجتماعی اجلاس جاری تھا۔ حجرے کی دیواروں پر تیل کے داغ اور قالینوں پر وہی نشان جو پچھلے جمعے کے بعد سے صابن کے انتظار میں تھے۔ مولوی صاحب ایک طرف کروٹ لیتے ہوئے بڑبڑائے، یا اللہ یا اللہ، کل کے چندے میں اگر 100 روپے اور بڑھ جائیں تو نیا تسبیح لے لوں گا۔ پرانی تسبیح تو لگتا ہے گناہوں سے گھس گئی ہے۔ اسی دوران باہر سے کوئی آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے پر قدم رکھتا ہے۔ گاؤں کا سب سے مشہور چور، پنڈت لچھو عرف کالا چور۔ چور کا داخلہ مولوی کی غفلت دیکھو۔ کالا چور اپنی چپل اتار کر آہستگی سے مسجد کے اندر داخل ہوا۔ دل ہی دل میں بولا، چوری بھی عبادت جیسا کام ہے۔ خاموشی، ترتیب اور نیت پاک ہونی چاہیے۔ اس نے چراغ کی روشنی میں مسجد کے چندے کا صندوق دیکھا۔ واہ بھائی واہ، یہ ہے مال غنیمت۔ پورے گاؤں کے 2 روپے یہاں جمع ہے۔ چور نے جیسے ہی صندوق کی کنڈی کھولی، پیچھے سے کھراٹوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ مولوی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان پر اڑ رہے ہیں، نیچے فرشتے ان کے استقبال کو تیار ہیں، مگر اچانک کوئی ان کے ہاتھ سے پھلکا پر اٹھا چھین لیتا ہے۔ مولوی صاحب نے نیند میں ہی ہاتھ ہلایا اور چیخے، اوئے 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 بدتمیز فرشتے، اوئے بدتمیز، میرا پراٹھا واپس کر۔ چور ڈر کر پیچھے ہٹا، مگر پھر ہنسنے لگا۔ واہ واہ مولوی صاحب واہ، خواب میں بھی لنگر سے کم پر راضی نہیں، پورا لنگر ہی لوٹ کر رہو گے کیا؟ چور نے دوبارہ کنڈی کھولی، اندر سے چند سکے گرے، کھن 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 کی آواز گونجی۔ مولوی صاحب کے کھراٹے رکے، آنکھ ذرا سی کھلی اور وہ بڑبڑائے۔ ایسی خوبصورت آواز، لگتا ہے کوئی بیوہ اپنی زیارت کا زیور دان میں ڈال گئی۔ پھر وہ دوبارہ سو گئے۔ چور نے سکھ کا سانس لیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ مولوی تو ڈیڈ بیٹری ہے۔ ابھی وہ سکے اٹھا ہی رہا تھا کہ مولوی صاحب اچانک اٹھ بیٹھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میں نے فرشتوں کو دیکھا؟ کسی نے میرے دان کو چھوا؟ مولوی صاحب بولے۔ چور پھرتی سے پیچھے ہٹا، اندھیرے میں چھپ گیا۔ مولوی صاحب نے چراغ جلایا اور بولا، یہ آواز، یہ خوشبو، یہ گناہ کی خوشبو ہے۔ پھر خود ہی ناک سونگھ کر بولے، نہیں 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 نہیں، یہ تو کل کے کھانے کی ہے، آلو قیمہ ذرا تیز تھا۔ چور اب پسینے میں نہا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے قرآن اٹھایا،
मगर आंखों पर नींद भारी थी। अगर कोई शैतान है तो याद रख, मैं हाफिज़े जुज़्वे आम हूं, यानी मैं अम्मा पारे का हाफिज़े कुरान हूं। मौलवी साहब बोले। चोर ने दिल में सोचा, अगर अम्मा पारे के हाफिज हैं तो पूरे कुरान का चोर मैं क्यों ना बनूं। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर उसी वक्त मौलवी साहब का बकरा छूटन बोल उठा, मैं। मौलवी साहब चौंक गए। अरे छोटन, रात के वक्त क्यों बोली? जरूर कुछ हुआ है। मौलवी साहब समझ गए। फिर वो बकरी की तरफ बढ़े, मगर उनका पांव संदूक से टकराया और संदूक गिर पड़ा। खनक टन 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 टन। मौलवी साहब चिल्लाए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। संदूक ने खुदकुशी कर ली, संदूक ने खुदकुशी कर ली। चोर भागने लगा, मगर मौलवी साहब ने पीछे से उनकी टांग पकड़ ली। अबे रुक जा, अबे रुक जा। तू कौन है जो मेरे चंदे पर डाका डालने आया है? चोर चीखा, मौलवी साहब छोड़ो, मौलवी साहब छोड़ो, मैं इंसान हूं। मौलवी साहब बोले, इंसान तो दिन में आता है, रात को सिर्फ गुनाह आते हैं। चोर हाँफता हुआ बोला, मौलवी साहब मैं भूखा हूं, मैं चोर हूं, मगर दिल वाला हूं। मौलवी साहब ने फौरन तस्बीह फेंक कर कहा, भूखा है तो पहले बता देता, चाय बना देता। ये लो बैठ जा, चोरी बाद में कर लेना। चोर हैरान हो गया, क्या मतलब? आप खुद कह रहे हैं कि चोरी बाद में कर लेना। मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, बेटा नियत अगर खालिस हो तो अमल का रुख बदल जाता है। तो चोरी करने आया, तू चोरी करने आया, पर तौबा की नियत से निकल सकता है। मौलवी साहब ने चाय चढ़ाई, बर्तन के अंदर चाय से ज्यादा पानी और पानी में ज्यादा आवाज। चोर बोला, मौलवी साहब चीनी डालनी नहीं भूल गए, मौलवी साहब चीनी डालनी भूल गए। मौलवी साहब बोले, बेटा हमारे यहाँ चीनी को ना समझो, मिठास ईमान से लाते हैं। बहरहाल दोनों ने चाय पी। चोर ने कहा, मौलवी साहब आप अजीब हो, मैं चोरी करने आया, आपने चाय पिला दी। मौलवी साहब बोले, हाँ क्योंकि मैं जानता हूं चोर का दिल नरम होता है, बस पेट सख्त होता है। उसी दौरान बाहर गांव के लोग शोर मचाते पहुंचे, चोर 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 चोर, किसी ने मस्जिद में देखा है? मौलवी साहब बोले, आहा अब मजा आएगा। चोर को लोगों ने घेर लिया, हर बंदे के हाथ में डंडा था, मगर मौलवी साहब आगे बढ़कर बोले, रुको, ये चोर नहीं हमारा मेहमान है। लोग हैरान, मेहमान? रात के 2 बजे मस्जिद में, वो भी? मौलवी साहब ने पूरे एतमाद से कहा, हाँ हाँ, अल्लाह के घर में जो आए वो मेहमान खुदा होता है। चोर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर दिल में सोचा, ये मौलवी तो कमाल के बंदे हैं, कैद की जगह लस्सी पिला देंगे फिर तो। चोरी की जगह जब चाय पिला दी। मौलवी साहब ने ऐलान किया, कल इस चोर को मैं खुद वाक़ दूंगा, मेरी नसीहत करूंगा। सब लोग मस्जिद में आए, देखें ईमान कैसे बदलता है। अगले दिन मस्जिद में हुजूम था। मौलवी साहब मिंबर पर चढ़े और चोर को सामने बिठाया। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज ये शख्स गुनाह से हिदायत की तरफ आया है। चोर ने कहा, जी 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 हाँ, क्योंकि मौलवी साहब ने चोरों को भी इज्जत दी। मौलवी साहब बोले, और मैंने वादा किया है कि अगर ये फिर चोरी करे तो उसके हिस्से की चाय में 2 चम्मच चीनी डाल दूंगा। लोग हंसने लगे। चोर बोला, तो मैं रोज थोड़ी सी चोरी कर लूं क्या? मौलवी साहब बोले, अरे नहीं बेटा, अब चोरी सिर्फ दिलों में ईमान की कर, माल में नहीं। वक्त गुजरा, चोर मौलवी साहब का मददगार बन गया। मस्जिद की सफाई, चाय बनाने वाला, चंदा गिनने वाला, सब काम उसकी जिम्मे सुपुर्द कर दिया मुतवल्ली है।
एक दिन मौलवी साहब ने देखा चंदे का डिब्बा फिर खाली है। अब्दुल करीम यानी साबिक का काला चोर, चंदा कहाँ गया? चोर बोला, मौलवी साहब मैंने मस्जिद की छत की मरम्मत करवा दी। मौलवी साहब मुस्कुराए, तो तूने चोरी की नीयत से लिया मगर मस्जिद की खिदमत में लगाया। सुभान अल्लाह, ये ईमान का अपडेट वर्जन है। गांव के लोग हंसने लगे। अब हर जुमे को लोग मस्जिद आते, सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि मौलवी साहब और चोर की नोक झोंक सुनने के लिए आते। मौलवी साहब कभी कहते, बेटा आज की सफाई बहुत अच्छी थी, लगता है ईमान बड़ा है। चोर बोला, जी मौलवी साहब आज बाल्टी आपकी नहीं मेरी थी ना, इसलिए अच्छी सफाई बनी। साल गुजरते गए, मौलवी साहब बूढ़े हो गए, चोर नेक बन गया। एक दिन मौलवी साहब बोले, बेटा आज तेरी शादी का निकाह पढ़ाऊं क्या? चोर ने कहा, मौलवी साहब निकाह का खुतबा थोड़ा मुख्तसर रखिएगा, कहीं भी बीवी भाग ना जाए। निकाह के बाद मौलवी साहब ने हंसते हुए दुआ दी, अल्लाह तुम्हें ऐसे बच्चे दे जो चोर न हो, बस थोड़े मौलवी जैसे हों, यानी दूसरों का वक्त चोरी करें। ये मौलवी की दुआ सुनने के बाद सब लोग कह कह लगाने लगे। आखिर में मौलवी साहब ने मजमे से कहा, देखो भाइयों, चोर हो या आलिम, असल नियत का मामला है, और अगर नियत में चीनी हो तो चाय ईमान वाली बन जाती है। सबक, गुनाह से बचने का सबसे आसान तरीका, हंसी को दीन के साथ जोड़ लो, उदासी खुद भाग जाएगी। मौलवी हो या चोर, दोनों को चाय की जरूरत जरूर पड़ती है। ईमान सिर्फ मस्जिद में नहीं, मजाक में भी नजर आ सकता है। मौलवी साहब और चोर की दोस्ती ने साबित किया कि नसीहत अगर मजाक में हो तो दिल में असर डालती है। कभी कभी चोर को चाय पिलाना पुलिस बुलाने से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? मौलवी और चोर के दरमियान की गुमशुद गुपचुक। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।